Okay, let's start by recapping what we did last time. So there are three types of learning as we discussed last week: supervised, unsupervised, and the reinforcement learning. In supervised, the difference is that in supervised, the data is in the form of X and Y, input and output. And in unsupervised, we only have X, right? So this is clear to all. And the next thing that we discussed was that the data itself is not enough to get a unique solution. So all machine learning problems or supervised learning problems, they are ill-posed, which means that you will not be able to get a unique solution just by looking at the data. So you have to do what? You have to make some assumptions, some biases. There are two types of bias in the inductive learning. One is preference bias, the other one is restriction bias. Restriction bias basically means that you limit the hypothesis space. So ultimately our goal is to find this function f or approximate this function f, which given the input x is going to output y. And in order to approximate, we look at a space, hypothesis space, and we choose the best solution from that hypothesis space, which is going to approximate the function f in as good as possible. But as I discussed, you cannot choose or you cannot select the best hypothesis just by looking at the data. So what you have to do is to make some assumptions. So first assumption is we'll restrict the hypothesis space. We say, okay, we are only going to look at this part of the hypothesis space. और इसमें जो आपको अच्छा मिलता है hypothesis, उसको आपने select करना है. The second is preference. In this case, we are going to look at the whole space, but we are going to impose some ordering. ठीक है? जैसे पहला हमने supervised learning algorithm पढ़ा था decision tree. Decision tree. In decision tree, we are going to consider all possible hypotheses or all possible decision trees. लेकिन what we are going to do? We are going to prefer कौन से trees which are of shorter height या depth. और वो सब हमने डिटेल देखी थी कि वो हमने किस तरीके से सेलेक्ट करना है बेस्ड ऑन दी इंफॉर्मेशन गेन या एंट्रोपी क्राइटेरिया. लैब में भी आपने ये किया था, इंफॉर्मेशन गेन को यूज़ किया है और उसकी मदद से आपने कंप्यूट किया है ट्री. तो this is the preference bias कि we are imposing some ordering के out of all the possible hypotheses we are going to select the one which is of shorter height and choose that. Then we looked in detail about decision tree or we followed a greedy approach. Basically हमने जो algorithm पढ़ा था that was called ID3 जो कि greedy approach इस्तेमाल करता है. Greedy approach का मतलब क्या है कि at each step we are going to make a local optimal solution step. At each step we are going to choose the optimal step कह लें या the optimal attribute के उस नोड पे जिसको रखना है, starting from the root. Okay, for example, this is one possible decision tree, but you can have other as well. So in order to select the best, what we are going to do is starting from the root node, we are going to see कि ये तीन आपके पास attributes हैं, इनमें से किसको select करना है, right? कि आपने outlook को choose करना है, humidity को करना है, wind को करना है. और ये हमने किस basis पे किया था? Based on information gain के जो attribute आपको maximum information gain दे रहा है, you are going to select that. And once you have done that, and at the next level, again you are going to repeat this process. उस पे भी आपने choose करना है and so on. तो ये तो है आपका ID3 algorithm. और last time we discussed in detail के what information gain is, what entropy is, और किस तरह इन basis पे आपने choose करना है. For example, यहाँ information gain 0.15 है, इस humidity को choose करने का, wind को choose करें 0.048 है, तो you are going to go with the higher 0.151. The last thing that we discussed in this lecture was overfitting. What is overfitting? Overfitting is when your training or your model, it adapts too much to the training data. For example, अगर आपने जैसे लैब में भी आपने किया था कि you were given some data set, उसको आपने divide किया 80-20 पे और
80% आपने यूज़ किया ट्रेनिंग के लिए और बाकी 20% यूज़ किया टेस्ट के लिए। तो अगर आप यू नोटिस करते हैं अपने एल्गोरिदम में कि ट्रेनिंग एरर तो बहुत कम है लेकिन टेस्ट एरर ज़्यादा है, तो देन देयर मे बी अ प्रॉब्लम ऑफ ओवरफिटिंग कि आपका जो मॉडल है इट इज़ नॉट बीन एबल टू जनरलाइज वेल टू अनसीन एग्जांपल्स. So that is what is overfitting. In decision tree, that can happen when you train your algorithm or when you use all the attributes in building your decision tree. जब सब attributes आप build करेंगे तो of course आपका जो depth है tree की वो बढ़ जाएगी. ठीक है, for example इस केस में आपके पास हैं ये 3 attributes, तो maximum depth कितनी हो सकती है? 3 हो सकती है कि हर एक लेवल पे आप एक attribute चूज करें. लेकिन अगर इसको आप रेस्ट्रिक्ट कर देंगे ओके आई एम स्टिल ओनली गोइंग टू गो अप टिल द रूट 2 नोड 2 और उस या सेकंड लेवल तक जाऊंगा, उसके बाद आई विल जस्ट स्टॉप ट्रेनिंग. तो दिस इज़ वन वे ऑफ अवॉइडिंग ओवरफिटिंग कि आपने मिड वे ट्रेनिंग स्टॉप कर दी. उसकी वजह से क्या होगा कि योर मॉडल विल बी एबल टू give you good results on the training on the test set also. So you may have observed, it also depends on the data set that you have, but in most cases this is what you observe कि जैसे जैसे आप उसकी डेप्थ को इंक्रीज करेंगे, इन अदर वर्ड्स जैसे जैसे आप ज़्यादा एट्रीब्यूट्स यूज़ करेंगे इन बिल्डिंग द डिसीजन ट्री, तो योर ट्रेनिंग एरर विच इज़ इन द रेड, योर ट्रेनिंग एरर विल डिक्रीज. ठीक है, दिस इज एरर. लेकिन इट विल हैपन कि जो आपका टेस्ट एरर है आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम और आफ्टर सम नंबर ऑफ नोड्स इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट इंक्रीजिंग, जैसे यहाँ इंक्रीज कर रहे हैं. तो फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरह का आपको ग्राफ मिलता है तो व्हाट इज़ द गुड प्लेस टू स्टॉप? राइट हेयर, इस नोड पे आप अपनी ट्रेनिंग ख़त्म कर दें क्योंकि इट इज़ गिविंग यू दी ट्रेनिंग एरर भी कम है और आपका जो टेस्ट एरर है वो भी कम है. ठीक है, इसके बाद जाएंगे तो दिस पोर्शन बेसिकली इज ओवरफिटिंग कि आपका टेस्ट एरर बढ़ रहा है, ट्रेनिंग एरर कम हो रहा है. ओके, so in decision tree this is a way to avoid overfitting. आप यहाँ कह रहे हैं, हाँ ठीक है, मतलब ये लाइन हमें ड्रॉ कर दी है. बेसिकली इस पोर्शन में आप कहीं भी स्टॉप कर दें. ठीक है, इट्स नॉट कि एग्जैक्टली आप इस तरह का एक ग्राफ देखेंगे. यहाँ तो हमने बड़े आइडियल केस आपको दिखा दिया, मे बी आपने जब लैब में किया हो तो एग्जैक्टली इस तरह का ग्राफ ना मिला हो, बट यू शुड सी के ट्रेनिंग एरर टेस्ट एरर कम हो रहा है एंड देन स्टार्ट्स टू इंक्रीज. तो जहाँ से इंक्रीज हो रहा है तो उस टाइम पे आप स्टॉप कर दें. ठीक है, ज़्यादा जब ज़्यादा आपने ट्रेन किया है तो ट्रेनिंग सेट के ऊपर आपने ज़्यादा ट्रेन कर दिया है और उसकी वजह से क्योंकि टेस्ट एरर पे जो आपका रिजल्ट आ रहा है वो बता रहा है कि आपका मॉडल कितना जो अनसीन डाटा पे है उस पर क्या एक्यूरेसी देगा. तो टेस्ट पे तो कम दे दिए क्योंकि उसी पे आप ट्रेन कर रहे हैं, तो इट इज़ पॉसिबल कि वो आपका जो मॉडल है इट हैज़ लर्न योर ट्रेनिंग सेट, उस पर तो अच्छा रिजल्ट दे रहा है, लेकिन ऑन टेस्ट सेट इट विल नॉट बी एबल टू गिव यू अ गुड रिजल्ट. ठीक है, इसकी देखें. सेकेंडली दिस इज़ अ टॉपिक जो कि हम वी आर गोइंग टू कम टू इट अगेन एंड अगेन, जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे लेक्चर्स, उनमें चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी क्योंकि वी विल एग्जैक्टली सी कि उसकी रीज़न क्या है. यहाँ उसको ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल है. तो फॉर नाउ जस्ट थिंक ऑफ इट इन दिस वे कि आपने अगर एक ही डिस सेट पे आप ट्रेन कर रहे हैं, ऑफकोर्स उसको आप याद भी कर सकते हैं. जैसे आपको मैं एग्ज़ाम दूँ, जो अगर एग्ज़ाम अगर मैं जो क्लास में आपको एग्ज़ाम जो पढ़ाता हूँ एग्जैक्टली वही आपको मैं दे दूँ एग्ज़ाम में, तो आप अच्छा परफॉर्म करेंगे. उससे रिलेटेड दूँ लेकिन एग्जैक्टली वो ना हो तो यू विल परफॉर्म बैड. तो हम ऐसा चीज़ चाहते हैं कि जो ट्रेन पे भी अच्छा परफॉर्म करे और टेस्ट पे भी अच्छा परफॉर्म करें. ठीक है, ये ना हो कि आप बस वो रटा लगा लें. इन अंदर वर्ड आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि उसने तो उसे मेमोराइज कर लिया एल्गोरिदम ने ट्रेनिंग सेट को. इट इज़ नॉट एक्चुअली डूइंग द राइट थिंग कि वो उसको जनरलाइज नहीं कर सका. ठीक है जी, ठीक है, वो वन ये भी एक चीज़ है कि आपके पास ट्रेनिंग डाटा ज़्यादा कर लें. ठीक है, दिस इज़ वन पॉसिबल सोल्यूशन ऑल्सो कि यू गैदर मोर ट्रेनिंग सेट. जैसे मैंने कहा कि ये टॉपिक ऐसा है कि इस पर हम दोबारा आएंगे आगे अगले लेक्चर्स में, और उनमें ये सब सिनेरियोज देखेंगे कि किन किन सिनेरियोज में आपको डाटा ज़्यादा लेना चाहिए, किन सिनेरियोज में आपको एल्गोरिदम पे देखना चाहिए कि आपका एल्गोरिदम में प्रॉब्लम है. तो वी आर गोइंग टू लुक एट ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, फॉर नाउ one of the ways of avoiding overfitting in decision tree is to stop early.
कि आप मिड वे स्टॉप कर दें बेस्ड ऑन दिस ग्राफ, तो ये एक तरीका है बचने का, ठीक है। Okay, now let's look at the next topic, which is another algorithm, a supervised learning algorithm, which is called the which is this naive Bayes classifier. Again, this is a supervised learning algorithm. So supervised means के अभी data इस case में भी will be provided by X and Y. Okay. Next thing is this is based on probability. So let's revise basic concepts of probability जो हमें required हैं. Or the number one thing is कि it is the probability we always denote that by P. So P denotes the probability of something, some event occurring or not occurring. So and this value is always between always between 0 and 1. 0 means that this event is not going to occur. 1 means that वो event is going to occur. 0.5 in case of binary variable means that equal chances हैं कि वो event, let's say tossing a coin की example ले लें, equal probability है head आने की या tail आने की, ठीक है। 0.1 है तो it means कि 1 out of 10 chance है head आने का या tail आने का, मतलब अगर P of head is 0.1 then it is 1 out of 10 chance of getting a head. सिमिलरली अगर आपके पास डाइस है जिसमें 6 पॉसिबल आउटकम्स होती हैं, तो उस केस में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इज आल्सो 1/6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 इज आल्सो 1/6. अच्छा, व्हाट अबाउट दिस केस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉसिंग अ कॉइन 4 टाइम्स, ठीक है, कि आपने पहली दफा भी हेड आए, सेकंड टाइम भी हेड आए, टेल आए और हेड आए, तो 1/16 नहीं 1/16, हाँ ठीक है, बेसिकली आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट 1/16. व्हाट अबाउट दिस केस कि यू रिपीट द एक्सपेरिमेंट 3 टाइम्स एंड 3 टाइम्स आपका जो भी वैल्यू आई है वो एक ही आए, अगर हेड आया तो हेड ही आए, टेल आया तो टेल ही आए, 1/8, 2/8, ठीक है। वो कैसे आपने किया देखें, अगर आपने 3 दफ़ा एक्सपेरिमेंट रिपीट किया है तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि आपके पास तीनों टेल आ सकते हैं, ये एक पॉसिबिलिटी है। ये दूसरी पॉसिबिलिटी है कि 2 टेल आए, थर्ड आपका हेड आए, ये थर्ड पॉसिबिलिटी है, फोर्थ पॉसिबिलिटी है, ठीक है, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ आपकी, एंड दिस इज लास्ट पॉसिबिलिटी। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पॉसिबिलिटीज़ हैं। और कितनी पॉसिबिलिटीज़ में आपके पास या तो तीनों हेड हैं या तीनों टेल हैं, ठीक है, 2 ही हैं, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपकी 2/8 या 1/4. And in binary variable, if the probability of head one outcome is given, then the probability of not occurrence उसका not opposite लें तो क्या होगी 1 minus, और usually this is how we write binary case में this is and B not A, हम इसको ऐसा लिखते हैं कि A means के वो event occur किया है, not A means के event ने वो occur नहीं हुआ, ठीक है। So these are very basic concepts. Let's move slightly. I mean, these are also basic, but a little bit advanced. So let's go through them. Let's look at now joint probability, marginal and conditional. पिछली slide में we were only looking at one random variable. अगर आपके पास 2 हैं या 2 से ज़्यादा हैं, then we talk about the joint probability, marginal probability या conditional probability. ठीक है, इस केस में we are only given कि अगर आपके पास 2 random variable हैं, एक है x, एक है y, and the possible outcomes जो x की हो सकती हैं वो लेट्स से, चूंकि यहाँ हमारा टेबल बना हुआ है तो 1 2 3 4 5, तो जो पहला रैंडम वेरिएबल x है, इट कैन ओनली हैव 5 पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल x1 हो सकता है, x2 हो सकता है, x3, x4, x5. सिमिलरली जो सेकंड रैंडम वेरिएबल है, इट कैन बी फ्रॉम दीज 3 वैल्यूज, ठीक है। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, चूंकि हमारे पास टेबल इस तरह का है तो आई एम गिविंग यूज एग्जांपल ऑफ दैट कि आई हैव 5 possibilities for x and 3 possibilities for y.
नाउ आई वांट टू कंप्यूट दी जॉइंट प्रोबेबिलिटी। जॉइंट प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि आई वांट टू कंप्यूट के व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी के x2i और y3i फॉर एग्जांपल। ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी है कि मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ये दोनों रैंडम वेरिएबल्स, पहले रैंडम वेरिएबल की जो आउटपुट है वो x2i, दूसरे की y3i। तो वो कैसे कंप्यूट करेंगे? इफ यू आर गिवन दिस टेबल, तो जो व्हाट आर यू गोइंग टू डू, आपने इनमें से कौन से सेल्स रीड करने हैं, या पहले ये देख लें कि व्हाट दी सेल्स रिप्रेजेंट। फॉर एग्जांपल दिस nij, व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स कि आपने जितनी बार ये एक्सपेरिमेंट रिपीट किया है, रिमेंबर इसमें दफ़ा इस टेबल में जो एक्सपेरिमेंट का मतलब ये है कि दोनों रैंडम वेरिएबल, लेट्स टेक दिस एग्जांपल कि आपके पास दो डाइस हैं, एक डाइस में 5 वैल्यूज आ सकती हैं, दूसरे में 3 आ सकती हैं, तो दोनों को आपने रोल किया। ठीक है, दिस इज वन एक्सपेरिमेंट के एक में कुछ वैल्यू आएगी, दूसरे में कुछ वैल्यू आएगी, एंड यू रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट मल्टीपल टाइम्स एंड देन फिल दिस टेबल by the number of times these different events occur. For example, if I say 5 here, it means कि y1 और x1 जब जिन जिन दफ़ा आया है तो वो टोटल काउंट कितनी है उनकी? 5. Similarly, if I have 3 here, so it means कि x3 and y2 have occurred 3 times. और टोटल अगर आपने इवेंट्स काउंट करने हो तो दैट विल बी द सम ऑफ ऑल द सेल्स। वो टोटल आपके पास इवेंट्स हैं, तो दैट आई एम रिप्रेजेंटिंग बाय n, विच इज द सम ऑफ ऑल द सेल्स। ओके, अभी मुझे बताएं कि व्हाट इज दिस प्रोबेबिलिटी इक्वल टू n। क्या लिखूं यहाँ में? सबस्क्रिप्ट क्या होगा? n11 मीन्स कि आई हैव टू रीड this first cell, first row, first column। तो 2 3 का आपने निकालना है, तो और लेट्स डिफाइन दिस के जो पहला आपका एक्सिस है वो ये x है, दूसरा y एक्सिस है, तो n2 3 दिस पार्ट यू आर गोइंग टू रीड विच इज 2 and 3। ठीक है, क्योंकि आपने इसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, आपने रीड कर लिया, डिवाइडेड बाय 15 नहीं, 15 तो टोटल सेल्स है, लेकिन n इज, ठीक है, डिवाइडेड बाय कैपिटल N विच इज द टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। ठीक है, तो इससे आपने प्रोबेबिलिटी निकाली, जॉइंट प्रोबेबिलिटी। एनी प्रॉब्लम इन दिस के जो आपने किया है n2 3 डिवाइडेड बाय n, इसमें किसी को अंडरस्टैंडिंग में कोई इशू हो? कि क्वाइट ऑब्वियस एंड समझ आने वाली चीज़ है। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द अदर थिंग विच इज मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। जॉइंट में यू आर ट्राइंग टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों ऑफ द टू वेरिएबल एट द सेम टाइम। मार्जिनल यू आर ओनली इंटरेस्टेड इन वन वेरिएबल। For example, you say कि I want to compute the probability of x2. So what will that be after looking at this table? इसमें से आपने कौन से सेल्स को रीड करना है, किन को ऐड करना है, वो क्या बनेगा? x2 किस में आया है, कौन सी कॉलम पे? x2 सेकंड कॉलम पे है। ठीक है, ये x1 है, ये x2 है, तो दिस कॉलम इज सेकंड कॉलम विच कंटेन्स x2। y वेरी हो रहा है लेकिन x2 सेम है। इन सब को आपने ऐड करना है क्योंकि आपने इसकी प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है। तो इन सब कॉलम्स को ऐड करके लेट मी कॉल दैट C2। आपने ऐड किया इन वैल्यूज को, यू गेट C2। तो C2 डिवाइडेड बाय कैपिटल N इज गोइंग टू गिव मी दी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसी तरह मैंने y1 कंप्यूट करना है, तो उस केस में y1 इज दिस रो, लेट मी कॉल दैट R1, कि इसको सम करके आपके पास जो वैल्यूज आएंगी दैट इज R1 डिवाइडेड बाय n। दिस इज गोइंग टू गिव मी दी marginal probability that y is equal to 1। ठीक है, similarly before going to the conditional, इसका अगर आपने मैथमेटिकली इसको लिखना हो इन मैथमेटिकल नोटेशन मार्जिनल प्रोबेबिलिटी को, तो उसको हम किस तरीके से लिखेंगे? वी आर डूइंग सम समेशन, और समेशन ओवर विच वेरिएबल, x या y? अगर आपने x को फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल x2 को करना है, तो आप x वो दैट इज फिक्स्ड, आप ओवर y समेशन कर रहे हैं, राइट? तो
आप करेंगे y इज इक्वल टू 1। लेट्स से यहाँ मैं इसको स्पेसिफिक कर देता हूँ ताकि लेट मी ये मैं कह देता हूँ कि x2 की मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाह रहा हूँ। तो y1 विल गो फ्रॉम 1 टू, या सॉरी y नहीं कहना चाहिए, इसको कह देना चाहिए i, कह देना चाहिए i टू 3, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ x टू y i, ठीक है, इसी के साथ लिखेंगे। और इन जनरल अगर आपके पास l आउटकम्स हैं, n आउटकम्स, जितनी भी आउटकम्स हैं यहाँ वो आप नोटेशन चेंज 3 की जगह वो कर देंगे। अगर 3 के बजाय 5 आउटकम्स है 5 कर देंगे, जितनी भी आउटकम्स हैं उतनी आप वो चेंज कर देंगे y की जितनी आउटकम्स हैं। और दिस इज गोइंग टू गिव यू दी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। बेसिकली इसको इन शॉर्ट अगर आपने ये सबस्क्रिप्ट एग्जैक्टली नहीं लिखना तो यू कैन सिंपली राइट इट लाइक दैट कि आई एम गोइंग टू सम ओवर ऑल वैल्यूज ऑफ y एंड देन यू गोइंग टू से x y, ठीक है। और दिस इज गोइंग टू गिव यू मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। इसी तरह अगर आपने मार्जिनल प्रोबेबिलिटी निकालनी हो y की, तो देन यू हैव टू सम ओवर ऑल वैल्यूज ऑफ x एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x y, ठीक है। इस दफ़ा आपने x की सब, क्योंकि y फिक्स कर दिया, x की सब वैल्यूज आपने उनको वेरी करना है और ये कंप्यूट करना है। ओके, द थर्ड इज कंडीशनल, ठीक है। दो हम देख चुके हैं, जॉइंट एंड मार्जिनल। द थर्ड इज कंडीशनल। कंडीशनल मीन्स के यू फिक्स वन ऑफ द रैंडम वेरिएबल। फिक्स मीन्स के यू आर गोइंग टू कंसिडर दैट एज एविडेंस के वो रैंडम नहीं रहा, वो दैट हैज अकर्ड। Example, I say कि what is the probability that I will get y1 condition on that x is 3, ठीक है। बेसिकली लिखते हैं आप इस तरीके से x is equal to x3, लेकिन let's assume कि you understood। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कैसे कंप्यूट करेंगे। We are saying कि x3 has occurred। x3 कौन सा कॉलम है, दिस वन, ठीक है। वी आर सेइंग कि ये पोर्शन आपका, वी आर ओनली नाउ फोकसिंग ऑन दिस पोर्शन क्योंकि दिस हैज अकर्ड, बाकी हम इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम कह रहे हैं कि इन 3 सेल्स में से y1 कब हुआ है, कितनी दफ़ा हुआ है, वो आपने रीड करेंगे इस वाले को, जो आपका सॉरी which is this part here। इस सेल की जो वैल्यू है वो आप डिवाइड कर देंगे बाय दी टोटल, जो आपका ये कॉलम लेट्स से तो 3 था तो इसे डिवाइड कर देंगे आप, ठीक है। तो इस केस में आप करेंगे C3 और इधर आप कर देंगे N3 1, ठीक है। इससे आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि आउट ऑफ ऑल दोज इवेंट जहां x3 था, y1 कितनी दफ़ा अकर किया है, कितनी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ओके, तो दिस इज गोइंग टू गिव यू दैट। सिमिलरली अगर आपने x2 y3 कंप्यूट करना है तो उस केस में आ जाएगा आपके पास 2 3 डिवाइडेड बाय r3, ठीक है, क्योंकि आपने रो को सम करना है उस केस में। ओके, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ आ गई, जॉइंट प्रोबेबिलिटी, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट अभी हम सिर्फ इन्हीं के जो रूल्स हैं वो देखेंगे कि किस तरीके से आपने कंप्यूट किया है। इस रूल को ऑलरेडी आप देख चुके हैं, सम रूल, कि अगर आपने मार्जिनल कंप्यूट करना है, यू सम ओवर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y एंड देन यूज दिस जॉइंट प्रोबेबिलिटी, ठीक है। बेसिकली इफ दिस इज गिवन तो यू कैन इजीली कंप्यूट मार्जिनल, सिर्फ वैल्यूज आपने प्लग इन करनी है और एक वेरिएबल को वेरी करना है, सम करना है, यू आर गोइंग टू गेट दी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। सो दिस इज सम रूल, ठीक है। द सेकंड वन इज प्रोडक्ट रूल, कि अगर आपने जॉइंट प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है, basically if you look at the second rule, it creates some kind of a link between the joint probability, this is conditional probability, and this is the marginal probability. It relates the joint with the conditional and the marginal probability, ठीक है। और इस केस में भी आई एम नॉट गोइंग टू एक्चुअली गो थ्रू दिस एग्जांपल कि ये वैल्यूज हैं तो ये इस तरह आएगा। प्लीज़ डू दैट एट होम, कि जब यहाँ से आप जाएं तो यहाँ कोई वैल्यूज आप प्लेस करके इन जगहों पे
एंड सी के जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी है क्या वो उसकी इक्वल है कि नहीं है। आई मीन ऑफ कोर्स इट इज़, क्योंकि ये रूल है, लेकिन जस्ट डू इट बाय हैंड टू सी के ये एग्जैक्टली इसी इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके, तो दो रूल आपने देख लिए। द लास्ट रूल जिसके बाद हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे इज द बेस थ्योरम। ओके, एंड बिफोर गोइंग देयर लेट मी ब्रीफली रिकैप अगेन कि हमने अभी तक सिर्फ जो देखा है वो चीज़ ये देखी है कि तीन तरह की प्रोबेबिलिटी देखी है आपने, जॉइंट प्रोबेबिलिटी, मार्जिनल और कंडीशनल। एंड देन वी हैव लुक्ड एट थ्री रूल्स। पहला है सम रूल, तीसरा है प्रोडक्ट रूल, और दूसरा प्रोडक्ट रूल है, और तीसरा है बेस थ्योरम जो हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, और बेस थ्योरम इज बेसिकली यूजिंग द प्रीवियस टू रूल्स टू कम अप विद दिस थ्योरम। फॉर एग्जांपल लेट मी राइट दिस रूल जो आपका प्रोडक्ट रूल है। इफ यू रिमेंबर के इसको आप, इसकी दो फॉर्म्स हैं, ये दोनों फॉर्म्स आर वैलिड, दे आर इक्विवेलेंट। आप या तो y गिवन x कर दें या x गिवन y कर दें, आगे मार्जिनल आप चेंज कर दें, x का कर दें या y का कर दें, दे आर बेसिकली इक्वल, दे आर इक्वल टू ईच अदर। इसी को यूज़ करके वी आर गोइंग टू राइट दी बेस थ्योरम। वो किस तरह के, हम इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेट करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ y x p ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ जगह नहीं है, लेट मी राइट ओवर हियर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ y over x p of x is equal to x y x। ठीक है, यहाँ से आपने डिनोमिनेटर में इसको ले जाएं, तो दिस गिव्स यू दी बेस थ्योरम जो कि नेक्स्ट स्लाइड पर लिखा है। ठीक है, इट इज एग्जैक्टली बेस थ्योरम। बेस थ्योरम अलाउज यू टू कंप्यूट दिस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फ्रॉम दिस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कि आप अगर जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी आपको नहीं भी पता तो यू कैन यूज़ दीज कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज टू कंप्यूट दी द वैल्यू। अदरवाइज देखिए, आपको यू नीड टू, अगर आपने ये कंप्यूट करना है तो यू नीड टू नो दी जॉइंट प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अगर आपको लेकिन जॉइंट ना पता हो तो यू कैन स्टिल यूज बाय यूजिंग दी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन वाई। और इन प्रैक्टिस जब आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं तो यू विल सी के इस तरह का टेबल आपको नहीं मिलता, कि बहुत, इट्स वेरी हार्ड कि यू गेट अ जॉइंट प्रोबेबिलिटी टेबल लाइक दिस। उसकी रीज़न ये है कि एक तो यूजुअली द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स दे आर नॉट 5-6 बट दे आर, उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, रैंडम वेरिएबल भी दो नहीं होते, आपके पास ज़्यादा हो सकते हैं। तो इस तरह का एक जॉइंट प्रोबेबिलिटी टेबल मिलना या कंप्यूट करना या डाटा से गैदर करना, इट्स वेरी हार्ड। So mostly what you will be given is the conditional probability, something like that. तो अगर ये आपको पता है तो you can easily compute this using Bayes theorem. या अगर ये पता है, ये यूज फाइंड कर लेंगे, ये पता है तो ये फाइंड अप कर लेंगे, और आपको जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ना भी पता हो तो यू कैन लिव विद दैट। ठीक है, वो यही फायदा है बेस थ्योरम का कि यू कैन कंप्यूट दीज प्रोबेबिलिटीज। सो नाउ सम नोटेशन कि ये हमने बेस थ्योरम लिख दिया। दिस बेस थ्योरम इज इम्पोर्टेंट फॉर दी टुडेज लेक्चर, क्योंकि इसी में हम इसी को यूज़ करेंगे। एंड जो पहला पार्ट है आपका, इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट कि यू शुड नो कि इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर, और इसको हम कहते हैं लाइकलीहुड। अभी आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आई मीन बेस थ्योरम ये भी है, और बेस थ्योरम आप इसको ये भी लिख सकते हैं, दिस इज आल्सो बेस थ्योरम। ये भी बेस थ्योरम है, राइट, दोनों इक्विवेलेंट फॉर्म्स हैं। तो इसमें हम इसको कहेंगे पोस्टीरियर, इसको हम कह रहे हैं लाइकलीहुड। इसमें इसको लाइकलीहुड पाएंगे, तो वो हम अगली स्लाइड में देखते हैं। लेकिन बट फॉर नाउ रिमेंबर के ये जो पोर्शन है जो इक्वल टू के पहले है, इसको हम कह रहे हैं पोस्टीरियर, इसको हम कह रहे हैं लाइकलीहुड, और थर्ड वन को हम कह रहे हैं प्रायर। ठीक है, मतलब इसको हम पहले मार्जिनल भी कह रहे थे, लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट बेस थ्योरम देन वी आर गोइंग टू कॉल इट द प्रायर प्रोबेबिलिटी। ठीक है,
नो लेट्स लुक एट द रीजन कि हम ये प्रायर लाइक्लीहुड क्या कहते हैं और कहाँ से नाम आए हैं और क्या रीजन है ये करने की। बेसिकली दिस बेस थ्योरम उन जगहों पे यूज होता है जब आपके पास इस तरह की सिचुएशन हो कि दो रैंडम वेरिएबल हो, इन द सिंपलिस्टिक केस ए और बी। आई मीन पहले हम एक्स वाई यूज कर रहे थे, बट ए बी कैन बी टू वेरिएबल। क्या आपके दो रैंडम वेरिएबल्स हैं ए एंड बी, ठीक है, और जो वेरिएबल ए है इट इज़ नॉट ऑब्जर्वेबल, कि डायरेक्टली उसका आउटकम आपको विजिबल नहीं है, ठीक है। और जो वेरिएबल बी है उसका वो डेट इज़ द एविडेंस, उसका आपको इट इज़ नॉट हिडन, उसका जो रिजल्ट है या जो आउटकम है वो आपको डायरेक्टली विजिबल है। उस एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अभी आप क्लास में बैठे हुए हैं, तो मैं अभी आई कैन नॉट से कि आप में से कौन अटेंटिव है कि नहीं है, राइट। अब आप देख भी इधर रहे हैं लेकिन मैं फिर भी नहीं बता सकता कि आप अटेंटिव है कि नहीं है, वो डेट इज़ बेसिकली हिडन फ्रॉम मी। लेकिन अभी मैं क्विज आपसे लूँ तो डेट विल गिव मी सम आइडिया कि आप में से कौन अटेंटिव है कि नहीं है, ठीक है। तो वो मैं ये ड्रॉ कर सकता हूँ इस तरह कि ये आपका है अटेंटिव, आप हैं कि नहीं है, और दिस इज क्विज, ठीक है। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप अटेंटिव है नहीं है, बट दैट इज़ नॉट विजिबल टू मी और डायरेक्टली ऑब्जर्व मैं नहीं कर सकता। लेकिन क्विज लेके मैं आपका वो उसको इनडायरेक्टली एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकता हूँ, ठीक है। तो दिस इज माय ऑब्जेक्टिव टू कंप्यूट दी प्रोबेबिलिटी कि आप अटेंटिव हैं या नहीं है बेस्ड ऑन कि आपका क्विज मैंने लिया उसकी क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। तो दैट इज व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन, कि जो हिडन वेरिएबल है उसके बारे में कुछ मैं मालूमात लेना चाहता हूँ बेस्ड ऑन दी जो ऑब्जर्व मैंने किया उसके ऊपर, ओके। तो इसी को हम कहेंगे पोस्टीरियर, कि जब भी आप एक हिडन वेरिएबल को या अनऑब्जर्वेबल वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी कंडीशन ऑन द ऑब्जर्वेबल वेरिएबल फाइंड करना चाहते हैं, तो उस प्रोबेबिलिटी को आप क्या कहेंगे, पोस्टीरियर। द अदर वे अराउंड विच इज दिस के व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कि अच्छा क्विज आएगा कि आप अटेंटिव हैं, दिस इज द लाइकलीहुड। और ये अगर आप में ये आपका नहीं भी पता तो आई कैन से कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट मे बी इज 90%, कि अगर आप अटेंटिव हैं तो क्विज आपका अच्छा ही आएगा, और अगर आप अटेंटिव नहीं है तो क्विज आपका बुरा आएगा। तो आई कैन हैव सम रफ एस्टिमेट, इसका मैं निकाल सकता हूँ। दैट इज बेसिकली कॉल्ड द लाइकलीहुड, दिस इज कॉल्ड द पोस्टीरियर, दिस इज द प्रायर प्रोबेबिलिटी ऑफ कि आप अटेंटिव है या नहीं है, या इन जनरल के एक रैंडम वेरिएबल जो हिडन है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, उसको हम कह रहे हैं प्रायर। और ये इंफॉर्मेशन भी टू सम एक्सटेंट वी कैन गैदर फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस, कि मेरी लेट्स से पिछली क्लास में मैंने क्विज लिया था, उसमें क्या रेशो था, कितने अटेंटिव थे कितने नहीं थे। तो बेस्ड ऑन दैट आई कैन हैव सम रफ एस्टिमेट कि अच्छा जी आधे हैं या जितने भी परसेंटेज है वो अटेंटिव है और बाकी अटेंटिव नहीं है, ठीक है। तो बहरहाल दिस इज कॉल्ड द प्रायर, लाइकलीहुड एंड पोस्टीरियर। नाउ इज इट क्लियर कि पोस्टीरियर क्या चीज़ है, लाइकलीहुड क्या है। इफ आई हैव a base net like this, so which one of these is posterior probability and which one is likelihood? पोस्टीरियर कौन सी है इनमें से, सेकंड वन या फर्स्ट वन, ठीक है सेकंड वन, क्योंकि ये वेरिएबल y है इट इज हिडन, दिस इज ऑब्जर्वेबल, जो आपने जिसको ऑब्जर्व किया है, दिस ऑब्जर्वेबल वेरिएबल इट इज डिपेंडेंट ऑन y, बट y को आप डायरेक्टली नहीं देखा आपने, ठीक है। तो इसलिए दिस इज पोस्टीरियर, दिस इज द लाइकलीहुड प्रोबेबिलिटी, ओके। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज द प्रायर, जो कि जब आप बेस थ्योरम में यूज करेंगे तो दिस इज द प्रायर फॉर दैट। प्रोबेबिलिटी ऑफ x को आप मार्जिनल भी कह सकते हैं, बट लेटर ऑन वी विल सी के जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आ रही है वी डू नॉट नीड टू कंप्यूट दैट, और उसकी रीज़न ये है कि वी विल इनडायरेक्टली कंप्यूटेड बाय अनदर प्रोसीजर जो कि हम आगे देखेंगे, ठीक है। इसलिए दिस डिनोमिनेटर इज नॉट फॉर नाउ, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। बहरहाल इसका एक नाम भी है, आई थिंक इट इज़ कॉल्ड मार्जिनल समथिंग, वो मैं देख के बता दूंगा एग्जैक्टली इसको कहते क्या है, बट वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड के उसको हमने कंप्यूट कैसे करना है। लेकिन बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ?
ठीक है, आपने अभी हमने बेस थ्योरम देखा। बेस थ्योरम का हमने सिंपलिस्टिक देखा, नेट बेस नेट, जिसमें आपके पास एक हिडन वेरिएबल है, एक ऑब्जर्वेबल वेरिएबल है। हिडन वेरिएबल आपको डायरेक्टली ऑब्जर्व आप नहीं कर सकते उसको हिडन को, और लेकिन आपने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ द हिडन वेरिएबल कंडीशन ऑन द एविडेंस जो आपको मिला है, ये आपने फाइंड करना है। दिस इज द पोस्टीरियर एंड यू आर गोइंग टू यूज द बेस थ्योरम टू डू दैट। ठीक है, कि आपको लाइक्लीहुड अगर पता है और प्रायर पता है तो यू कैन इजीली कंप्यूट दैट प्रोबेबिलिटी जो कि हिडन वेरिएबल की है। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर होगी सबको। लेट्स मूव टू अ मोर कॉम्प्लिकेटेड केस कि जब आपके पास एक के बजाय दो एविडेंस हों। ओके, अभी आपके पास C is a hidden variable and there are two observable variables T1 and T2। और ये प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम ये है कि C रिप्रेजेंट्स के किसी इंडिविजुअल को कैंसर है या नहीं। दैट इज़ दी प्रोबेबिलिटी दैट वी आर ट्राइंग टू फाइंड। और T1 T2 दो टेस्ट हैं जो आपको बताते हैं कि अगर पॉजिटिव है तो मे बी कैंसर है, इसी तरह T2 भी टेस्ट है कैंसर का। ठीक है, अब what we are interested is in this posterior probability. So what is the probability of having cancer conditioned on the two tests उनके आउटकम पे, वो आपका एविडेंस है। यू हैव ऑब्जर्व, या डॉक्टर ऑब्जर्व किया है T1 T2, उसकी बेस पे अभी उसने बताना है कि इसको कैंसर है क्या, या प्रोबेबिलिटी क्या है उसके कैंसर होने की। ठीक है, तो अब द क्वेश्चन इज के वी कैन डू दैट इफ वी नो द लाइकलीहुड एंड द प्रायर। ठीक है, तो इस केस में लाइकलीहुड क्या है? एक लाइकलीहुड तो आपके पास है ये दूसरा लाइकलीहुड है T2 और C। ठीक है, यही दो लाइकलीहुड, एंड देन यू आल्सो नीड टू नो दी प्रायर। तो जो प्रायर है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि एक जनरल पॉपुलेशन में कैंसर कितनों को होगा, तो यू कैन कंप्यूट बाय लुकिंग एट पास्ट स्टेटिस्टिक्स कि कितने पॉपुलेशन में कितने लोगों को कैंसर है। तो फॉर एग्जांपल ये इन्फॉर्मेशन आपको किसी ने बता दी है, इट इज़ 0.01 के 1% जो है वो पॉपुलेशन को कैंसर है। सिमिलरली यू हैव गॉन टू, या जो टेस्ट जो भी टेस्ट होते हैं उनमें भी लिखा होता है कि अगर आपको कैंसर है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि टेस्ट पॉजिटिव आएगा। तो यू गेट दैट इन दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट टेस्ट एज वेल। सिमिलरली ये भी आपको पता लग जाएगी फ्रॉम दैट टेस्ट कि अगर आप ये दो टेस्ट हैं तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ये पॉजिटिव है अगर कैंसर है। सिमिलरली फॉर टेस्ट 2 एज वेल। नाउ यू वांट टू यूज द पोस्टीरियर दिस बेस थ्योरम टू कंप्यूट द पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। एंड बिफोर डूइंग दैट लेट मी ऑल्सो क्लैरिफाई वन थिंग कि ये आपने लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 गिवन C। अगर ये आपको पता है कि 0.9 है कि अगर कैंसर है तो टेस्ट पॉजिटिव आने की प्रोबेबिलिटी 0.9 है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट T1 गिवन कैंसर? ये 0.1 हो जाएगी, तो वो आपने 1 माइनस से कंप्यूट कर लेना है। बट रिमेंबर दिस, यू कैनॉट कंप्यूट दिस वैल्यू फ्रॉम दिस 0.9। ठीक है, क्योंकि नॉट C और वो आपस में रिलेटेड नहीं है, तो ये आप नहीं कह सकते कि 1 माइनस 0.9 करके ये भी इसको भी आप 0.1 कह दें, क्यों कंडीशन जो एविडेंस है वो तो अगर कर गया है तो यू हैव टू मेक इट फिक्स। ये C को नॉट C करके फिर वैल्यू नहीं निकालेंगे। तो हाँ, इस केस में the probability of T2 sorry probability of not T2 not C, ये आप कंप्यूट कर सकते हैं इससे, which is equal to 0.8, but you cannot vary the second जो evidences को चेंज नहीं कर सकते, वो आप उससे फिर आप सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू नहीं निकाल सकते। ठीक है, ओके, यहाँ तक तो सबको बात सही हो गई है कि ये इस तरीके से हमने अभी बेस थ्योरम अप्लाई करना है। तो नेक्स्ट वी सिंपली आर गोइंग टू राइट द इक्वेशन। बेस थ्योरम की क्या इक्वेशन है? इधर क्या आएगा अभी, या मैं यहाँ पहले बेस थ्योरम लिख दूँ कि दिस इज योर बेस थ्योरम ए बी ए और बी। तो इधर अब क्या आएगा? ठीक है,
और अब चूंकि यहाँ 3 वेरिएबल्स थे, तो वी हैव दिस वैल्यू हियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 T2 कंडीशन ऑन C। इसको भी हमने मजीद एक्सपेंड करना है यूजिंग द प्रोडक्ट रूल। व्हाट इज द प्रोडक्ट रूल? लेट मी राइट दैट एज वेल हियर। द प्रोडक्ट रूल इज के, इसको आप लिख सकते हैं ठीक है, ये प्रोडक्ट रूल है। तो इस केस में अभी आपके पास लेकिन let me write here probability of तो इसको कैसे लिखेंगे? या पहले टू मेक थिंग्स इजियर लेट मी रिमूव दिस कंडीशन। इस पर अगर आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें तो आपको क्या, व्हाट विल यू गेट? T2 T1 probability of T1, ठीक है। अब लेकिन चूंकि आपके पास C भी था, तो ऑल यू गोइंग टू डू इज के वेरेवर यू हैव द कंडीशन, उसके राइट साइड पे आपने C भी ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ भी C आ जाएगा, इधर भी C आ जाएगा आपके पास, ठीक है। सिंपली ये प्रोडक्ट रूल को ही हमने में अगर आपके पास कंडीशन है तो प्रोडक्ट रूल विल बी मॉडिफाइड लाइक दिस, ओके। भाई ये स्लाइड खत्म करके ब्रेक लेते हैं हम। तो दिस विल बिकम नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 T1 C, probability of T1 C, probability of C और divided by T1, ठीक है। यहाँ तक किसी को मसला कोई? Any question? Okay, let's take a break and then we will meet at 3. Okay, online class, any question?